एक्सरसाइज 3.2 हमारी इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और इनकंसिस्टेंट का मतलब है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अब कंसिस्टेंसी के दो केसेस हैं, एक वो केस जिसमें सिंगल सॉल्यूशन हो, एक दूसरा केस जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो सिंगल केस वाले, सो फर्स्ट केस इज ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ में तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। एंड सेकंड केस इज व्हेन वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस अगर होंगी तो सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। So there will be infinitely many solutions. इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होगा? कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सॉल्यूशन। अब अगर हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम कैसे पता लगाएं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं? उसके लिए क्या रूल है, क्या कंडीशन है? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं और यहाँ पर हमारे a1 a2 क्या है? सपोज देयर आर टू इक्वेशंस, तो दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो a1 और a2 क्या है हमारे इक्वेशंस में? x के कोफिशिएंट। और b1 और b2 क्या है? y के कोफिशिएंट्स। और c1 और c2 दोनों इक्वेशंस की कांस्टेंट वैल्यूज। क्वेश्चन 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Part 1, 3x plus 2y is equal to 5, first equation. 3x plus 2y is equal to 5, first equation. 2x minus 3y is equal to 7. So this can be written as 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. Similarly, 2x minus 3y is equal to 7 can be written as 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Here value of a1 is equal to 3, b1 is 2 and c1 is minus 5. Similarly, a2 is 2, b2 is minus 3 and c2 is minus 7. So a1/a2 is 3/2, b1/b2 is 2 by minus 3, c1/c2 is minus 5 minus 7. So that is 5/7. Clearly, a1/a2 is not equal to b1/b2. Therefore, exactly one solution exists. Or we can say unique solution. So that means the system of equations is consistent. Part 2, 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. So 2x minus 3y is equal to 8 can be written as 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. Similarly, second equation can be written as 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. Here a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 8. Similarly, a2 can be written as 4, b2 can be written as minus 6
C2 can be written as minus 9. So A1 upon A2 is equal to 2 by 4. That is 1 by 2. Similarly, B1 upon B2 is equal to minus 3 upon minus 6. That is equal to 1 by 2 again. C1 upon C2 is equal to minus 8 upon minus 9. So minus minus cancel. So it becomes 8 by 9. So here we can clearly see that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2. And this condition is when no solution exists. So that means system of equations is inconsistent in nature. So it is inconsistent. Part 3. 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14. As the denominator is not same, so we will be taking LCM. So first equation can be written as 3 by 2x plus 5 by 3y minus 7 is equal to 0. And LCM in this case is 6. So numerator becomes 9x plus 10y minus 42 is equal to 0. So that implies 9x plus 10y minus 42 is equal to 0. So this is our first equation. And second equation can be written as 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. Here A1 is equal to 9, B1 is equal to 10, C1 is equal to minus 42. And A2 is equal to 9, B2 is equal to minus 10 and C2 is equal to minus 14. So A1 upon A2 is equal to 9 upon 9, that is 1 by 1. So B1 upon B2 is equal to 10 upon minus 10. So that is equal to minus 1 upon 1. And C1 upon C2 is equal to minus 42 upon minus 14. That is equivalent to 3 upon 1. As we can clearly see that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So this implies these equations have exactly one solution, one unique solution. That means this type of system of equations is consistent in nature. So it is consistent. Part 4. 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. So 5x minus 3y is equal to 11 can be written as 5x minus 3y minus 11 is equal to 0. And second equation can be written as minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0. So here A1 is equal to 5, B1 is equal to minus 3, C1 is equal to minus 11. Similarly, A2 can be written as minus 10, B2 can be written as 6, C2 can be written as 22. So A1 upon A2 is equal to 5 upon minus 10. So that is equal to 1 upon minus 2, or we can say minus 1 by 2. Similarly, B1 upon B2 is equal to minus 3 upon 6. That is also equivalent to minus 1 by 2. C1 upon C2 is equal to minus 11 upon 22. That is also equivalent to minus 1 by 2. So it can be clearly seen that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, and it is also equal to C1 upon C2, and that value is equal to minus 1 upon 2. So that means this system of equations is consistent in nature. It has infinitely many solutions. So it is consistent in nature.
Part 5. 4 by 3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12. So this can be written as 4 by 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम LCM लेंगे. LCM is 3 and numerator becomes 4x plus 6y minus 24 is equal to 0. If we'll take 3 on right hand side, the equation becomes 4x plus 6y minus 24 is equal to 0. So this is equation 1. And second equation can be written as 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Equation 2. Here a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 and c1 is equal to minus 24. Similarly, a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to minus 12. So, a1 upon a2 is equal to 4 by 2, that is equal to 2 upon 1. b1 upon b2 is equal to 6 upon 3, so that is also equal to 2 upon 1. c1 upon c2 is equal to minus 24 upon minus 12, so that is again equal to 2 upon 1. So clearly we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is also equal to c1 upon c2, and that is equal to 2 upon 1. So that means there are infinitely many solutions possible. And hence we can say that this system of equation is consistent in nature. Question 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent and which are inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First part, x plus y is equal to 5, which can be written as x plus y minus 5 is equal to 0. Second equation is 2x plus 2y is equal to 10, that can be written as 2x plus 2y minus 10 is equal to 0. So this is equation 2. So here a1 is equal to 1, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 5. Similarly, a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 10. So a1 upon a2 is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 is also equal to 1 upon 2. c1 upon c2 is equal to minus 5 upon minus 10. So that means that is also equal to 1 by 2. So clearly it can be seen that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is also equal to c1 upon c2, and these all are equal to 1 by 2. So the given system of equations has infinitely many solutions. That is, it is consistent in nature. और क्योंकि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसलिए हमें इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करना है. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे. दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x और y की. सो इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. हम x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की कितनी वैल्यू आई? 5. सिमिलरली जब हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो x की क्या वैल्यू आई? 5. ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यूज़. अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन सेकंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन विल बिकम 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. So that means 2y is equal to 10 and y is equal to 10 upon 2. So that means y is equal to 5. Similarly जब हम y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x plus 0 is equal to 10. That means 2x is equal to 10 and x is equal to 10 upon 2. That means x is equal to 5. ये टेबल हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए. अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से, इन x और y की वैल्यूज़ की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ फॉर इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या है 5. सो दैट मीन्स दिस पॉइंट. सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस पॉइंट. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन 1 के लिए. सिमिलरली अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे. वो भी सेम है वैल्यूज़, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0. तो अब इसके लिए जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो वो बिल्कुल कोइंसिडेंट है, यानी ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं. पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. X minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16. So the equation can be written as x minus y minus 8 is equal to 0. This is equation 1. Similarly, second equation can be written as 3x minus 3y minus 16 is equal to 0. This is equation 2. Here value of a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 1, c1 is equal to minus 8. Similarly, a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 16. So, a1 upon a2 is equal to 1 upon 3. b1 upon b2 is equal to minus 1 upon 3, that is equal to minus minus gets cancelled, that is equal to 1 upon 3. c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 16, that is equal to 1 by 2. So clearly it can be seen that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, and we know this condition is for no solution. So the given system of equations has no solution, that is it is inconsistent in nature. और क्योंकि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है इसलिए हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. पार्ट 3, 2x plus y minus 6 is equal to 0, equation 1. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, equation 2. So here a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6. Similarly, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to minus 4. So a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, that is 1 by 2. Similarly, b1 upon b2 is equal to 1 upon minus 2, that is equal to minus 1 by 2. c1 upon c2 is equal to minus 6 upon minus 4, that is equal to 3 upon 2. So clearly it can be seen that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. उनमें किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का. एंड एज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, सो दैट मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन. सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ one solution, one, or we can say unique solution. Unique means उस जैसा और कोई ना हो, single. And as it has unique solution, so that means the nature of equation is consistent. So it is consistent. क्योंकि equations consistent है इसलिए हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. So let us draw graph. Equation 1 के लिए टेबल बनाई, उसमें वैल्यू पुट करेंगे x की. सपोज x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या होगी,
y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 6, सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सपोज x की वैल्यू को 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बनी, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली अब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू को 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो दैट इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। अब हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। अब उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जब हमारे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 6, दैट मीन्स दिस पॉइंट। और जब हमारे x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए। सिमिलरली अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की क्या है, -2, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड दैट पॉइंट इज दिस। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वैल्यू इज 2। सिमिलरली y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वहाँ भी वैल्यू क्या आई, 2। सो द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट आर 2 एंड 2। सो दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन फॉर दीज इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड y की वैल्यू भी क्या आई, 2। पार्ट 4, फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y minus 2 is equal to 0. Second equation 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. So here a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 2 and c1 is equal to again minus 2. Similarly a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 4 and c2 is equal to minus 5. So a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, that is equivalent to 1 by 2. b1 upon b2 is equal to minus 2 upon minus 4, that is also equivalent to 1 by 2. c1 upon c2 is equal to minus 2 upon minus 5, so that is equal to minus minus gets cancelled, 2 by 5. So clearly a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. और ये कंडीशन किसकी है, नो सोल्यूशन की। सो दैट मीन्स सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इट इज़ इनकंसिस्टेंट इन नेचर। और क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम इसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। क्वेश्चन 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ हमें क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, हम कैसे चेक करेंगे कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी अगर हमें विड्थ की वैल्यू पता है तो हम लेंथ की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x. Similarly let width of rectangular garden be y meter. Now according to the question में क्या स्टेटमेंट थी, whose length is 4 meter, length is 4 meter more means plus, more than what, more than its width. तो हमने लेंथ क्या अज्यूम की, x is equal to 4 plus width क्या अज्यूम की, y. So equation is x minus y is equal to 4. So this is equation 1. अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब हम अगर ध्यान दें तो इसने पेरीमीटर की बात की है, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर की वैल्यू जो भी है उसका हाफ। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर, दैट मीन्स लेंथ हमारी क्या थी x, ब्रेथ क्या थी y, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 36. 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, सो इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई विल बी सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x plus y is equal to 36 and x minus y is equal to 4. Y and y get cancelled out, so what remains is 2x. 2x is equal to 40. So from here we get x is equal to 40 upon 2, that is equal to 20. और हमने x किसे अज्यूम किया था, लेंथ को, so that means length is 20 मीटर. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. So 20 plus y is equal to 36. Y is equal to 36 minus 20, so that implies y is equal to 16 meter. So x was length, so that means length is equal to 20 meter, and y was width, so that means width is equal to 16 meter. So this is our answer. Question 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first part intersecting lines. अब हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक इक्वेशन बनेगी, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं. अब हमारी चॉइस है कि हम इक्वेशन क्या बनाएं, बस हमें लॉजिक समझ आना चाहिए. तो लॉजिक के लिए हम यहाँ कंडीशन यूज़ करेंगे. पहली इक्वेशन में अगर हम देखें तो a1 की क्या वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की क्या वैल्यू है -8. अब हमें क्या देखना है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन है, सो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस इज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो हम a2 की वैल्यू अगर अज्यूम कर लें कुछ भी, तो उसी के बेसिस पे हम b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो लेट a2 इज इक्वल टू 4, सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं, 6, 8, इट डिपेंड्स. हमने 4 ली, सो a1 अपॉन a2 बिकम्स 2 अपॉन 4, सो दैट मीन्स रेशियो इज़ 1/2. अब हमें क्या ध्यान रखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि b1 बाई b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2. सो देयरफॉर b1 बाई b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. सो दैट मीन्स b1 की वैल्यू हमारे पास है 3, सो 3 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, सो दैट इम्प्लाइज 6 इज़ नॉट इक्वल टू b2. तो इसका मतलब ये हुआ कि b2 की वैल्यू, अगर हम a2 की वैल्यू 4 रखें तो b2 की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है. तो हम b2 की जगह पर 6 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस पॉसिबल होंगी. सो मैं ऐसा भी ले सकती हूँ 2x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 2x प्लस 1y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. बस एक 6 नहीं लेना, बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो वैल्यू फॉर b2 कैन बी एनी नंबर अदर देन 6 इफ़ आई टेक a2 एज 4. सो दैट इम्प्लाइज अगर मैं अभी कोई एक इक्वेशन बनानी है ही, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं b2 की वैल्यू क्या ले रही हूँ 7 और c2 की वैल्यू सेम रख रही हूँ -8. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं. So equation becomes, second equation will be 4x plus 7y minus 8 is equal to 0. यहाँ एक और अगर एक एग्जाम्पल लें तो 4x plus 8y minus 8 is equal to 0. तो आप देख रहे हैं मैंने y का कोफिशिएंट यानी b2 की वैल्यू 6 को छोड़ के कुछ भी पुट की है, 7, 8 जो आपका दिल करे. Question 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is parallel line. और पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो हमारे केस में a1 की क्या वैल्यू है 2 और b1 की क्या वैल्यू है 3. सिमिलरली c1 की क्या वैल्यू है -8. तो हम a2 की वैल्यू एज्यूम करेंगे. मैं इस क्वेश्चन में भी a2 की वैल्यू 4 ही एज्यूम कर रही हूँ. सो फर्स्ट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. So a2 is 4 and if a2 is 4,
रेशो ऑफ a1 by a2 is equal to 2/4, that is equivalent to 1/2, and that is also equal to b1 upon b2. So 2/4 is equal to b1 की वैल्यू 3, so 3 upon b2. So that implies 2b2 is equal to 3 multiplied by 4, that is 12. So from here we get the value of b2. b2 is equal to 12/2, that is equal to 6. तो हमारे पास a2 की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली थी 4, वहाँ से b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 6. ये वैल्यू अलग होगी b2 की अगर आप a2 की वैल्यू कुछ और अज्यूम करेंगे तो. अभी के लिए b2 की वैल्यू 6 कब, जब हमने a2 की वैल्यू 4 अज्यूम की. नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/6 एंड वी नो b1 अपॉन b2 कैन नॉट बी इक्वल टू c1/c2. सो दैट मीन्स 3/6 कैन नॉट बी इक्वल टू -8 अपॉन c2. सो दैट इम्प्लाइज 3c2 इज नॉट इक्वल टू -48. So 3c2 is not equal to -48/3. So that means c2 is not equal to -16. यानी c2 की वैल्यू -16 के अलावा कुछ भी हो सकती है. सो इक्वेशन कैन बी, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0. और a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, और हमने a2 की वैल्यू क्या अज्यूम की थी 4. सो इक्वेशन बिकम्स 4x. b2 की क्या वैल्यू आई थी 6, सो इट इज़ 6y. और c2 की वैल्यू क्या आई है -16 को छोड़कर कुछ भी. सो दैट मीन्स सो हियर आई हैव अज्यूम्ड इट एज -1. सो -1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली मैं कोई और इक्वेशन ले सकती हूँ, 4x प्लस 6y -8 इज इक्वल टू 0. ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं. क्वेश्चन 6 पार्ट 3, कोइंसिडेंट लाइन्स. कोइंसिडेंट लाइन्स की क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2. और इस इक्वेशन में a1 की क्या वैल्यू है 2, b1 की क्या वैल्यू है 3 और c1 की क्या वैल्यू है -8. अब फिर से हम a2 की वैल्यू एज्यूम करेंगे. a2 की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की, सपोज 4, आप कुछ भी ले सकते हैं. सो दैट मीन्स रेशो ऑफ a1 by a2 बिकम्स 2/4. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 and that is also equal to b1 by b2. और हमारे b1 की क्या वैल्यू है 3. सो 3 अपॉन b2. b2 इज इक्वल टू 6. सो b2 की वैल्यू भी आ गई. सो दैट मीन्स रेशो ऑफ b1 by b2 इज 3/6. सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. सो 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 by c2. और हमारे c1 की क्या वैल्यू है -8. सो -8 अपॉन c2. So c2 is equal to -16. So the equation will be a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहाँ a2 की क्या वैल्यू 4, so equation is 4x. b2 की वैल्यू 6, so 6y. c2 की वैल्यू -16, so -16 is equal to 0. 4x plus 6y -16 is equal to 0. इसी तरीके से बहुत सारी equations बन सकती हैं. Question 7. Draw the graphs of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. That means इन equation से जो भी ग्राफ बनेगा उससे एक triangular region बनेगी जिसे हमें shade करना है और उसके coordinates बताने हैं. So let us find the values of x and y in a tabular form. So first equation x minus y is equal to -1. उसके लिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, -y इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड. सो y इज इक्वल टू 1. सिमिलरली y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई -1. ये हो गई हमारी टेबल इक्वेशन 1 के लिए. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. x की वैल्यू को जब 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12. दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 12/2. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6. सिमिलरली जब y की वैल्यू को 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 3x इज इक्वल टू 12. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12/3. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4. अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं. अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सो फॉर इक्वेशन 1 x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1. सो दैट मीन्स दिस पॉइंट. और x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू क्या है 0. दैट मीन्स दिस पॉइंट. अब ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया. अब सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे.
x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट। ये सेकंड इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम ट्राइंगुलर रीजन को शेड करेंगे और कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हमने मान लिया A, और ये हो गया हमारा पॉइंट B, ये हो गया हमारा पॉइंट C जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। तो ये हो गई हमारी ट्राइंगुलर रीजन ABC। इसे हमें शेड करना है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x और y एक्सिस पे और A कोऑर्डिनेट की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो x की वैल्यू आई 2 और y एक्सिस की वैल्यू आई 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए A के लिए, सो दैट मीन्स 2,3 आर कोऑर्डिनेट्स फॉर A। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0, सो 4,0। और ये हमने इसे येलो कलर से शेड कर दिया है। सो दिस इज द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड ट्राइंगुलर रीजन।